ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ। ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਦੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਰੇਟਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਆ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੀਏ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ जुड़े हुए हो तो की आज तक अचीवमेंट्स है ਤੁਹਾਡੀਆਂ? मैम, हमारी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है स्वरमनी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे युवा हैं, कॉलेज के और स्कूल के स्टूडेंट्स हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग स्वच्छ भारत पर काम करते हैं, इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। 3 आवर्स बेसिकली रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस पर काम करते हैं। सरकार की जो पॉलिसीज़ आती हैं, बेसिक पॉलिसीज़, उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, कैंप्स लगवाते हैं। इसके अलावा डिजास्टर के लिए अभी कोविड में हमारी टीम, जैसे आपने बताया कि डेड बॉडी मैनेजमेंट में था, तो सबसे पहले हमने ही शुरू किया था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से। इसके साथ साथ वॉलंटियर्स, हम लोग वॉलंटियरली लोगों के साथ जुड़ते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ कराना चाहती है, कुछ सहयोग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। और युवाओं के बीच में एक आग जलानी बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आज दिन प्रतिदिन हम एडवांस तो हो रहे हैं पर हमारी मोरल वैल्यूज़ बहुत कम होती जा रही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखे हुए हमारी संस्था का एक मकसद है कि इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलें और अपने देश के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ? अराउंड 100 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें वॉलंटियरली गवर्निंग बॉडी और हमारी जो और लोग हैं मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये चेंज होते रहते हैं, आते रहते हैं, वॉलंटियर्स जाते रहते हैं। तो ये एक सर्कल है, साइकिल है, चलती रहती है इसके साथ में। ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ NGOs ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਛੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੇਸ करना पड़ा। मैम, पहली बात तो इस चीज़ के बीच में, इस चीज़ के बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं, ऐसा कुछ हमारी सोच ही नहीं है। वी बिलीव इन सस्टेनेबल वर्क। ऐसा काम करना है हमारी संस्था का, हमारा खुद का एक मकसद है कि ऐसा काम करना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जिसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़े, सोसाइटी उसका लाभ ले सके। काम ऐसा ही होना चाहिए। बाकी कौन कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। हम अपना देकर चलते हैं, आज हमारे देश को, हमारे समाज को क्या चाहिए और किस तरह से उसको कर सकते हैं। वी बिलीव इन पार्टनरशिप बिल्डिंग, सबके साथ मिलकर काम करना, सबको अपने साथ लेकर चलना। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲੌਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾਏ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਓਕੇਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ सम्मानित? जी, मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है श्रीलंका में मेरे कामों को लेकर यहाँ पर। और उसके बाद मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम के थ्रू मुझे मिल चुका है। मैं चंडीगढ़ को राजपथ पे 2017 में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। मैंने सलामी दी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसके साथ ही मुझे भारत सरकार ने मेरे कामों को देखते हुए मुझे रशिया भेजा था 2017 में, जिसमें मैंने पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था और मेरे लिए गर्व की बात है। वहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा है कि उन सब चीज़ों से ये इंटरलिंक्ड है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं। इसके साथ ही मेरा 2 वर्ल्ड बुक में नाम है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर हूँ मैं। और हमारे इसके साथ साथ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम है।
और इसके साथ ही जो स्टेट अवार्डी हूँ और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं काम करने के लिए। वी आर नॉट वर्किंग फॉर अवार्ड्स, पर अच्छा लगता है जब कोई प्यार और सिर पर आशीर्वाद रखता है अपना। और इसके साथ ही बहुत सारे काम करते जा रहे हैं। स्वरमणि को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एशियाज़ की 6 कंट्रीज़ हमें ऑनर कर चुकी हैं। एक नेशनल रिकॉर्ड और एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड हम लोग बना चुके हैं। अभी ही गवर्नर साहब हैं जो वीपी सिंह बदनौर, हमने जो काम किए थे कोविड में, उसमें उन्होंने हमें ऑनर किया है। ऐसे ही प्रशासन हमें स्वच्छ भारत के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर मिल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन ने हमें पिछले 2 साल से चंडीगढ़ को हम पहला प्राइज़ दे रहे हैं स्वच्छ भारत में। ऐसी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम जो भी काम करते हैं उसमें एक आउटपुट देते हैं। ऐसा नहीं है कि काम करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़पेपर में आ गया तो बस हमने स्टॉप कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आज तक जो काम किया है अपने लेवल पर उसको पूरा 100% दिया है। हम लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं। लोगों ने बोला था कि आप दियो को कैसे रिसाइकिल कर सकते हो, कचरे से कैसे पैसा बना सकते हो, पर हमने कचरे से पैसा बनाकर दिखाया। और ये जो काम किया है, जो कोविड में हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे कोविड महामारी की वजह से, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। ये काम उन बच्चों ने किया है, इसका 40% उसको जाएगा। आज हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो ये एक छोटा सा प्रयास था लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भरता के लिए। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਗੈਸ ਅਵਾਰਡਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਾਰਡਸ ਜਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਏ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2019 के उठाए हुए दिए हैं। ये तकरीबन 35 से 30 हज़ार उठाए थे, जो कि साफ़ करने के बाद 20 हज़ार बचे। तो 20 हज़ार में से अब हमने जो आपके पास मैं ये दिया दिखाना चाहूँगा, ये वो है जो चंडीगढ़ के लोगों ने कहीं ना कहीं गिरा होगा। ये आपके गिरे हुए दिए हैं जो कि 5 अलग अलग तरह से धुले हैं। और अब ये हमने एक पैकिंग बनाई है, इको फ्रेंडली पैकिंग। ये 2 दर्जन दिए हैं, जिसमें 12 रिसाइकल्ड हैं और 12 एकदम नए हैं, क्योंकि कई लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हमें मंदिर के आगे एकदम प्योर दिए लगाने होते हैं। तो एक इको फ्रेंडली 50 रुपए की 2 दर्जन की पैकिंग है। उसके अलावा कुछ ये फैंसी दिए हमें मिले थे, पर ये एक स्टॉक हमारा ख़त्म हो गया मैम, फैंसी दियों का जो हमें रिसाइकल में मिले थे। तो ये हमें नए खरीदने पड़े क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। पर ये सबसे सस्ता दिया हमारा है 10 रुपये का, जो कि अगर शोरूम्स में आप देखें जाकर तो ये इसका सेट 200 रुपये का है, अच्छी पैकिंग में है, प्लास्टिक की पैकिंग में। बट हम लोग प्लास्टिक के अगेंस्ट है, वही चीज़ दे रहे हैं सिर्फ 10 रुपये में। उसके साथ ही ये छोटा दिया, ये रिसाइकल्ड है, ये दिया 10 रुपये का है। इसके बाद हमारे पास ये फैंसी दिए 10 रुपये के हैं, और इसमें ही एक बड़ा साइज़ है वो 20 रुपये का मैम हमारे पास। तो एक बहुत कॉमन सा प्राइस रखा हुआ है ताकि हर कोई ख़रीद सके। और एक मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा। लोगों ने कहा अगर तुम बेच रहे हो तो हमारे कुम्हारों का क्या होगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए, कॉल्स भी आई, किसी को नंबर मिला, तो हमने उन्हें यही कहा कि हमने एक कुम्हार मलवया कॉलोनी है जो कुम्हारों की कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। तो वहाँ पे हमने एक फैमिली से कमिटमेंट की हुई है कि जो भी सामान हम खरीदेंगे या किसी को दिलाएंगे, आपसे दिलाएंगे। अभी तक उनका 30 हज़ार रुपये का कोविड के दौरान सामान हम खरीद चुके हैं, दिलवा चुके हैं, उनका इतना फ़ायदा करा दिया। इसके अलावा इसी अभियान के अंदर जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था, वो पेपर का भी हम लोग पेपर से भी कुछ चीज़ें बना रहे हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को 30 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो चुका है सिर्फ कागज़ के सामान से, जो कि DLF मॉल में आज हैंगिंग के रूप में लटकाया हुआ है। तो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक मकसद था वो पूरा हो चुका है मैम। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਪਾਂਸਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ आया। हमारी जैसी जनरेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जैसी जनरेशन को बाहर निकल के अपना थोड़ा सा टाइम सोशल वर्किंग के लिए देना चाहिए, ताकि हमारी जैसी जनरेशन को और इंस्पिरेशन मिले। मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुई थी जब इन्होंने सोशल वर्क करना शुरू किया था मेरे भैया ने। तो हमने भी सोच लिया कि हम भी इनके साथ थोड़ा टाइम तो ज़रूर देंगे, अपनी एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सोशल वर्क भी देंगे, ताकि हम लोग एग्जाम्पल बन सके हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ।
एजुकेशन पॉलिसी अच्छी आ गई है और हम सभी को एजुकेशन की तरफ आगे जाना चाहिए, चाहे वो कोई ना कोई क्यों ना हो, छोटी से छोटी ही जगह में क्यों ना वो बच्चे पढ़ रहे हो, झुग्गियों में क्यों ना पढ़ रहे हो, हम उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और उनको आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि हम उनकी एजुकेशन अच्छी बना सके और वो हमारे जैसे लोगों के एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सो सकें। दैट्स वाई निशु जुडिशरी में जज के लिए अब तैयारी कर रही है इसी उम्र में। वी वांट कि कोई भी ऑफिसर है, कोई भी डेजिग्नेशन है, एक अच्छी हम्बल डेजिग्नेशन हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो लोग ज़मीन से मिट्टी से निकले हैं वो अगर आगे जाके एक कोई अधिकारी एक अच्छा पद पाते हैं तो वो लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी है कि मेरी बहन जुडिशरी के लिए तैयारी कर रही है और एक दिन मैं जज के रूप में इनको देखूंगा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸੌਰਟਡ ਆ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। थैंक यू सो मच मैम। मैं डेली पोस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे कार्यों को इतना प्रोत्साहित किया और हम आगे भी मिलकर ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟਸ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਇਹ ਪਾਈ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੀ ਆ। 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਥ, ਜਿੰਨੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇਗੀ, ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ।